जरूरत हो बोलोगे भी पूछने के लिए. ओके, सो और ऐसे म्यूट किए रहो. wherever you have to, let's say, ask or talk genuine thing, please do it. So ma'am also tested whether you wanted to go to school, you want to go to school or not. And the boy told that yes, I will if you open a school. And after some time he met ma'am on the road and immediately ran to him and then asked, ma'am, is the school open? And ma'am felt awkward and she told that no, it takes a lot of time to open the school. So it's whenever it will be opened, I will, let's say, I will inform you. And then ma'am, author, narrator, asked his name. That paragraph we have cleared that his name was Sahab-e-Alam, and Sahab-e-Alam means also clear that Sahab means Sahab and Sahab don't mean Sahab. We have misconcept about Sahab, मतलब लगता है कोई कमिश्नर है, वैसे नहीं. साहब का मतलब होता है मालिक, Muslim word, Urdu word, and Malik of what? Universe. And ma'am was badly shocked and surprised that the meaning of his name is Sahab-e-Alam. ये 12th बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, वो ओवर हुआ, उसका बिल है. And the fact is that he is in a very, let's say, poor condition, that you know well, isn't it? So ma'am started thinking that any day if he will know and realize, if you know the meaning of his name, he will be in bad shock and he will not believe that the meaning of my name is Sahab-e-Alam means universe of the world, entire universe. यहाँ एक रूम के भी मालिक नहीं है और इसके नाम का मतलब है यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो she thought that it's very difficult for him. And later on she also asked, written there, that why you are not wearing chappals. I ask now. My mother did not bring them down from the shelf. Perhaps I have done in the class, but still I am repeating. And she knows everything well. She is a mature person, 30, 35, 40 years old. Simply she wants to get the answer from the children, what they tell. If I ask them why you are not wearing chappal, however they know well that very poor family, they don't have house, they don't have nothing to eat, how can, let's say, afford chappal? But still she asked, and then one of the boy replied that I have a chappal, pair of chappal or slipper or footwear, but my mom does not permit to wear it, rather she has kept it at a high place and don't let it down so that I can wear, why I have told in the class. But later on what happened, एक बच्चा तुरंत बीच में तपाक से आया है और वो बोल रहा है, even if she did, he will throw them off. और वो बोली कि नहीं, हटा भी लेंगे ना, तो वो if she did, he will throw them off. वो पहनेगा नहीं, वो फेंक देगा, उसको आदत नहीं है. और दूसरा आदत नहीं है, तीसरी बात है कि उसको खाना और कपड़ा का दिमाग में दिन भर टेंशन है. हम भूखे पेट है, 2-4 दिन से खाना नहीं मिला और एक से एक कपड़ा और सैंडल और शूज पहने हुए हैं, उससे क्या होगा? वो सब तब अच्छा लगता है जब पेट में खाना रहता है. वो इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच. व्हेन आई कमेंट ऑन इट, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग. वो बेटा झेप गया है ना. क्योंकि एक बच्चा जो था ना, वो जूता पहना हुआ था, लेकिन दोनों दो डिजाइन का या 2 साइज का जूता था. व्हाट हैपेंस दैट सपोज दैट वंस आई, लेट्स से आई मीन threw it on the piles of the garbage, and one you throw, and he got it from here and there and started wearing. Chalo, something is better than nothing. And ma'am, let's say, pointed out, oh boy, what are you doing? You are wearing which sort of, let's say, shoes? Both are different, both are of 2 sizes and 2 companies. Then see what the boys replied. Then he couldn't reply anything, and he simply says nothing. क्या बोलता है वो बेचारा? Says a third boy who has never owned a pair of all his life. ये लाइन लगता है कटा हुआ है, फिर भी ये लाइन पकड़ लो, तुम वहीं पर है. Says a third boy who has never
who has never owned a pair all his life. अभी तक जितना उसका उम्र में है, चाहे 10 वर्ष हो, चाहे 5 वर्ष, चाहे 15 वर्ष के भी लड़के होते हैं, 20-25 वर्ष के भी होते हैं, जो कूड़ा को बीनते रहते हैं, चुनते रहते हैं। वो बोलते उसको जीवन में आज तक जूता चप्पल नहीं मिला। वो बोल रहा है कि इसको मिल भी जाएगा ना, ये पहनेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को बिना पहने तकलीफ होता है, आइदर एट होम और आउटसाइड द होम, and they have problem in walking and maintaining it when they wear it. So he tells that even if he is going to get it, he will, let's say, I am in through it. And I hope you all are understanding. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. Means thousands of children are there, not only in Delhi, because he is educated and money, and for writing purposes he is traveling from one town to another town or city to city, and everywhere they she has seen the same scenario or the status of these children. They are poor, they are wearing dirty and torn and tattered clothes, and they are barefooted all the time. They never wear. So she tells, whether I am in cities or village, this sort of children never wear shoes, and this is a kind of tradition in their family. कुछ भी करेंगे, कपड़ा तक पहन लेंगे, खाना कहीं पर अच्छा खा लेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, चप्पल से दोस्ती नहीं। वो क्यों हमको लगा, इसलिए आई होप यू आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। वो अननेसेसरी एक एक्सपेंस है, और जिनको जीवन भर घर नहीं मिलेगा, whole life they are not going to build a home, and they cannot ensure that every day they will get the meal, they will take the meal food all the 2 times if not 3 times. Such sort of children and family cannot, let's say, imagine and have a concept of let's say shoes or footwear or chappal. So it has become a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. But they are utterly poor, badly poor. Nobody is more poor than they. No one is poorer than they. And I have told, whole life they lead a very hellish life, and they are devoid of food, devoid of basic, let's say, I mean, needs. What to say of basic needs? Even they don't get water and air in pure form. Everything is written later on. Now come, ये लाइन से होशियार रहना, ये लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, अंडरलाइन कर लो. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अब आगे चलते हैं, ठीक है? अंडरस्टूड समथिंग? विजय, सलोनी, तनु बेटा बोलो. स्वाति, प्रियांशु, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग? रिप्लाई मी. यस सर. यस सर. ठीक है, ओके. हाँ, सुनते हैं, फ्री में सुनते रहना, बैठ के सो के सुनो, बैठ के सुनो, घर में हो, तुम्हारा ऑडियो वीडियो सब बंद है. अब एक जूता चप्पल पे ही बात निकली है, तो कितना ज्यादा हमको भी याद है बचपन में, ठीक है? उस समय हम आज क्लास में बताए, द सिनेरियो वाज डिफरेंट. वी बिलोंग टू, लेट्स से, लोअर मिडिल क्लास. आज तक हम अपने आप को मानते हैं अपर मिडिल क्लास में भी नहीं है, मिडिल क्लास भी नहीं है. तो हमारे पास एक स्कूल का शू होता तो मिलता था. आई वाज स्टडिंग इन, लेट्स से, इन ए वेरी गुड स्कूल, KB नंबर 1. उस समय 1 और 2 था ही नहीं, सिर्फ 1 था. और शहर में सिर्फ 50-60 बच्चे अलाउड थे 10th बोर्ड का एग्जाम देने, जिसमें हम भी थे, बिकॉज माई फादर वाज देयर इन दैट वेरी स्कूल. सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. तो उस समय हमको लगता था ना कि घर के लिए हमारे पास एक जो फैशन वाला, उस समय BSC चलता था, जूता. एक बाटा का दुकान होता था और एक BSC. तो हमको लगता था BSC से कोई एक अलग से जूता मिल जाए, और पापा बोलते थे नहीं, जूता है नहीं, पैसा है नहीं, जो जूता है स्कूल वाला है, कहीं जाना भी है, जैसे कोई पार्टी फंक्शन शादी विवाह जाना, तो उसी को पहन को हमको खराब लगता था. तो उसी पर एक कहानी यहाँ भी है, ठीक है? वो दुनिया ही दूसरा था, पैसा था ही नहीं किसी के फैमिली में, और जो था पैसा उसमें बस आराम से खाओ पियो, पहनो कपड़ा और घर में अपना रहो. तो उसी पर एक कहानी है यहाँ पर. आई रिमेम्बर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी. मीन्स देयर वाज ए मैन and he lived at a place. Which place? The name of the place is Udupi. You have to underline it. And he was telling a story that as a young boy he would go to school past an own temple. That man who was narrating that story to author telling that when I was very small I used to go to school, okay, and on the way there was a temple, and every day he was
stopping at the gate of the temple, at the door of the temple. जैसे हम लोग को भी मंदिर उंदिर कहीं मिलता है आते जाते, तुमको भी ना हाथ उठ जाता है, थोड़ा श्रद्धा से उठ जाता है, अगर मौका है तो एक क्षण के लिए रुक जाते हैं। ये बच्चा जो कहानी बता रहे थे, जब बचपन में थे तो ये ओल्ड टेम्पल के पास मिलता था, रास्ते में स्कूल जाने पर तो रोज वहां रुकते थे। वेयर फादर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, और पंडित जी थे उनके पिताजी पुजारी थे। और पुजारियों का तो पुराने जमाने में, आज तो कुछ ठीक भी है, पुराने जमाने में ना पुजारियों का बहुत हाल खस्ता था। हम लोग जो दान वगैरह देते हैं ना, उसी से उनका जीवन यापन चलता था। आज तो पंडित जी बहुत डेवलप हो गए, पुजारी लोग, उनके पास भी लैपटॉप है, घर है, कोई LIC का साइड में करते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो वो क्या करते थे, उनके फादर पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। और टेम्पल में रुक के और हम लोग कुछ प्रार्थना करते हैं, भगवान दौलत दीजिएगा, सुख दीजिएगा, शांति दीजिएगा, एग्जाम में पास कर दीजिएगा। वो एक प्रेयर बोलते थे। व्हाट वाज द प्रेयर? द प्रेयर वाज दैट प्लीज गॉड फ्रॉम समवेयर मैनेज और अरेंज अ पेयर ऑफ शूज। इतना अच्छे जूता चप्पल से हर आदमी को खास करके बचपन में लगा होता है। बड़े होने पर तो इतना पहन लेते हैं ना, और नहीं भी रहता है ना तो समझदारी आ जाती है। और छोटा बच्चा में रहता है ही नहीं, पापा को बोल नहीं सकता है, घर पंडित जी का जैसे तैसे चलता है। और जो आज भी ब्राह्मण देवता है गांव वाले, जो कोई साइड बिजनेस नहीं, कहाँ कोई हम लोग अब पूजा पाठ करवाते हैं, और कहाँ उन लोग को हम लोग देते भी हैं तो 10 रुपया 5 रुपया, उसमें क्या होता है। अब पूजा पाठ से लोग दूर होते जा रहे हैं, दान कम देते हैं। वो एक चीज का प्रार्थना बच्चा करता था, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी ए शूज, कहीं से दिलवा दीजिए। और 30 साल बीत गया, और 30 साल में पूरा जीवन और सिनेरियो और पिक्चर स्केप बैकड्रॉप पूरा चेंज हो गया। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of dissolution. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. अब इतना माहौल बदल गया, स्टेटस इतना बदल गया है, जूता चप्पल तो दूर की बात है। अब वही मंदिर में जाते हैं, पंडित जी दूसरे हो गए, वो तो पंडित जी का डेथ उठ हो गया होगा, हो सकता है उनके बच्चे के बच्चे होंगे, उनके अब घर में लाल पीले नीले जो हम लोग को घर पे प्लास्टिक चेयर्स आजकल जो फैशन चल गया वो है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस सब चेंज हो गया। ब्राह्मण देवता का भी चेयर से उनके बैकयार्ड में रखा हुआ है। मंदिर के अलावे जो भी जगह है ना, मंदिर के आगे पीछे जगह होता था, बाड़ा होता था, खुला जमीन, वहां बोलते हैं कि young boy dressed in a where lived the new priest, there were red and white plastic chair. A young boy dressed in a gear uniform. आज पंडित जी का बेटा देखो स्कूल जा रहा है और यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है। ये यंग बॉय, ये यंग बॉय का है, ये जो कहानी आदमी सुना रहा है ना, उन्हीं के खानदान का कोई बच्चा है। यंग बॉय कहानी नहीं सुना रहा है, जो यूपी का आदमी जो कहानी मैम को सुना रही है, तुम्हारे नरेटर को। A young boy dressed in a grey uniform. Whatever the uniform is, the color is grey. Wearing socks and shoes. जूता चप्पल का प्रार्थना करता था। और आज के पंडित जी के पुजारियों का बच्चे का जूता चप्पल है, ठीक है, wearing socks and shoes भी है, socks भी है। Arrived panting and threw his school bag on a folding bed. वहाँ एक बेड लगा हुआ है, चलो महंगा बेड नहीं है, फोल्डिंग बेड है, और ये पैंटिंग हाँपते हुए आया। बच्चे अधिकांशतः पुराने जमाने में पैदल आते थे, पैदल जाते थे, हाँपते हुए आए, बैग को फेंके हैं बेड पर और जूता चप्पल खोल के देख रहे हैं। देख रहा वो शूज है। लुकिंग एट द बॉय, अब इस बच्चे को देख रहे हैं ना, ये मैम देख रही है। आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। ये खाली अब शूज का बात चल रहा है। सूज के लिए बच्चे परेशान हैं, सूज चाहते नहीं है, उनके यहाँ ट्रेडिशन है और उन लोग कभी कल्पना नहीं करते हैं। बच्चे भी, पैसा भी आ जाता है कि सूज लेना है, कपड़ा ले लेंगे, खाना कहीं पिज्जा बैठ के खा लेंगे, कहीं बर्गर खा लेंगे, फास्ट फूड खा लेंगे, लेकिन सूज यूज नहीं। इसलिए कि सूज में एक अलग अननेसेसरी खर्चा और मेंटेन करना है। और देखो एक बच्चा को जूता मिल गया है तो वो क्या कर रहा है, वो माँ से, श्रद्धा से, मंदिर में देवी देवता से, फ्रॉम द डेडीज, फ्रॉम द गॉडेस ही इज वर्शिप, आई मीन प्रेइंग, व्हाट प्रेइंग, कि हमको जो जूता मिला है ना, इस जूता से हमको अब जुदा मत कीजिएगा, ये जूता हमारे पास जीवन भर रहने दीजिएगा। इतना लगाव है जूता से, और इतना कॉस्टली और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग था जूता गरीबों के लिए। क्या बोलता है, लेट मी नेवर लूज देम स्टैंड फॉर द शूज। भगवान से इन्हें प्रार्थना करता है, हमको पढ़ा दीजिए, हमको दौलत दीजिए, धन दीजिए, बस एक प्रार्थना करता, ओ गॉड, ओ माँ, प्लीज डू नॉट सेपरेट मी बाय माय शूज।
neither it should be damaged nor it should be stolen from me. I love this shoe. This Godhead has granted his prayer. और लगता है ना एक तरह से उसकी प्रेयर माँ सुन ली है। आज तो उसको शौक है, शूज है, घर में चेयर है, स्कूल जा रहा है, यूनिफॉर्म पहन रहा है। Young boys like the son of the priest now wore shoes, means the entire scenario, financial status, the situations, the circumstances has stemmed from the olden time. And between the olden time and the modern time was different, and there is a gap of minimum 30 to 40 years. And in 40 years, now all the children of the Pandiji priest are having shoes and socks and uniform, and they are leading a comfortable life. This is the gift of the modern life. But many others, like the rag picker in my neighborhood, remain shoeless. Now she is coming back to the point. That coming back to the point means she is only exclusively talking about the rag pickers. उनका परिस्थितियां 30 साल पहले या 40 साल भी हुई है, आज भी है, 40 साल बाद हो ही रह जाएगा. And that's why the last line is written. But many others like the rag picker. अभी हजारों बच्चे ऐसे हैं, खास करके rag pickers के सोसाइटी में, उनके समुदाय में, उनके ग्रुप में, जो कि मेरे नेबरहुड में या कहीं भी है, आइदर इन दिल्ली और गया और इन लंदन और इन विलेज, सब जगह रैग पिकर्स होते हैं. इन माय नेबरहुड रिमेन व्हाट? शूलेस. वो शूलेस के शूलेस है. तो कहने का मतलब हम लोग को सब कुछ भगवान दिया है, तुम लोग का उसकी कदर करो, रेस्पेक्ट करो, पेरेंट्स को थैंक्स करो, और उसके बदले से अच्छा पढ़कर अपने अगले जनरेशन को, कल तुम्हारा भी बच्चे होंगे, शादी विवाह होगी, तो उनके जनरेशन को और अच्छा बनाने के लिए जितना तुम मजबूत रहोगे मेंटली पढ़ाई से, उतना तुम ज्यादा एफोर्ड कर पाओगे. हम लोग अपने बच्चे को 500 का जूता देते हैं तो 5,000 का भी जूता आ रहा है. हम तो नेट पर देख रहे हैं 1.5 लाख का जूता आ रहा है अमेरिका में और कहां. तो सब जूता का अलग अलग क्वालिटी भी है. ऐसे भी बोला जाता है ना कि कपड़ा सस्ता पहन लेकिन जूता महंगा. जूता से एक तो आदमी का स्टेटस होता है, दूसरा जूता आंख से डायरेक्ट टच रहता है. जो हमारा तलवा है सोल पैर का, वहां जो नस है वो डायरेक्ट दिमाग और आंख से जुड़ा हुआ है. तो और दूसरा जो ठेवना में दर्द, नकल्स में, नीज में जो एज होने पे दर्द होता है ना, खराब जूता चप्पल, चीप जूता चप्पल पहनने से होता है. तो महंगा पहनेंगे तो वो कंप्यूटराइज बनाता है, और उसका जो मटेरियल है हम लोग जितना पहनते हैं, जैसे कि जितना स्पोर्ट्स शू आया वो सब घटिया शू है. अगर जो हम लोग 2,000, 4,000, 5,000 वाला कैंपस वगैरह पहन रहे हैं ना, ये प्लास्टिक है और रब्बिश प्लास्टिक है. वो ही 25-50 हजार वाला, 1,00,000-2 लाख वाला जो जूता है ना, उसमें मटेरियल वो चमड़ा कराता है. शुरुआत में हम लोग के समय में प्लास्टिक आता ही नहीं था, और कोई भी जूता जो था ना वो चमड़े का बनता था. चमड़ा का जूता पहनने से न नी में प्रॉब्लम आता है और न बेटा आंख का रोशनी घटता, बल्कि आंख का रोशनी बढ़ता है. वह तो फैशन हो गया, और इस फैशन में लोग एक्शन के चक्कर में और कैंपस के चक्कर में 2,000 का जूता पहनते हैं. लेकिन सबको देख लो, वो स्पंज है, वो प्लास्टिक है, रॉ प्लास्टिक का बनाया गया. हम तुम जो तरह तरह का प्लास्टिक फेंकते हो ना, उसी को रिसाइकिल करके उसका सोल बनता है, और ऊपर तो कपड़ा है. तो ऊपर से मतलब नहीं है, मतलब है नीचे से. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड स्टडीड इट. ओके, अब आगे चलते हैं. माई एक्वेंटेंस, मेरा जान पहचान. किससे? किसका जान पहचान? ये ऑथर जो अनीश जंग है, जो वो इज टेलिंग यू, नरेटिंग द स्टोरी. और किससे? इन बच्चों से, रैग पिकर फैमिली से, बच्चों से. माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. इतना ज्यादा शी बिकम्स क्यूरियस टू नो अबाउट these children and to know about their family and their background as to how they live, what is their, let's say, social condition. She went to सीमापुरी. बच्चों के साथ होते होते उनको पटिया लिया. बाबू रे, आज तुम्हारे हम घर चलेंगे. बच्चे भी खुश हो गए, इतना पढ़ा लिखा, इतना बड़ा आदमी है. they are what doing, she wants to come to my home, and that's why they become very much proud. हमारे यहाँ एसपी आ जाएंगे, कमिश्नर आ जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा. डीएम साहब आए, हमको भी अच्छा लगेगा, तुमको भी, बच्चों को भी अच्छा लगा, चले गए साथ साथ. प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली. ये दिल्ली के बॉर्डर पर है, मतलब दिल्ली का जो मेन सिटी का जो आउटस्कर्ट एरिया. और वो भी आज का नहीं, आज से 40-50 साल पहले. हम क्लास 2 में थे, ये 1972 की कहानी है. क्लास 2 में करीब 50 साल बीत गया. तो वहां पर वो सन्नाटा था, डेजर्टलेस था, पीपललेस था. ओनली लेट्स से फॉरेस्ट वेयर देयर, एंड द एंटायर कूड़ा, गार्बेज ऑफ योर, लेट्स से, आई मीन, दिल्ली सिटी वाज डंप्ड देयर. तो वहां चली गई एट द बॉर्डर ऑफ द दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. इस लाइन को अंडरलाइन करो. ये लाइन तुमको बोला जा रहा है, पहले हम हिंदी में बता देते हैं कि ये दिल्ली से
दिल्ली के बॉर्डर पर है, 2-4-5 किलोमीटर है, लेकिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर है। आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग। साक्षी, प्रियांशु, ये लाइन बार बार एग्जाम में आया है। यस लिसन दैट दिल्ली से बहुत पास है, बहुत दूर है। कैसे पास है? पास है कि 2-4 किलोमीटर है, और दूर है चूंकि दिल्ली के लोग हैं। They are, let's say, just aristocratic people living in the capital of our country. But these children who are rag pickers, they are living on the mud, on the garbage. There is no home. If some of the family has made a, let's say, hut, it is roofless. मान लो 1, 2, 3, 4 दीवार भी बना लिए घर में, तो उनके यहाँ छत नहीं है, छत है फिर भी वो चू रहा। तो ये इस तरह से this is, let's say, far from Delhi, far away from the Delhi, and this is also, let's say, I mean, very close to Delhi in distance, but in tradition it is far away. तो ये place on the periphery of the Delhi, yet miles away from it. दिल्ली से करो लाखों किलोमीटर दूर। कहाँ? दिल्ली के लोग, रईस लोग, पैसे वाले लोग, पावर वाले लोग, और ये बच्चे जो जंगल में रहते हैं, कूड़ा के ढेर पे इनका जन्म हुआ है, वही इनका डेवलपमेंट होगा और वही अंत होता है। यह सदियों से होते आ रहा है और आज भी हो रहा है। भले ही प्लेसिंग चेंज हो गया और पूरे एरिया को वो कंस्ट्रक्ट कर लिया गया, मॉल बन गया, वो तुम्हारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, लेकिन दूसरा जगह चल जाएगा, फिर कहीं जंगल झाड़ में चल जाएंगे जहां कूड़ा को डंप किया जाता है, वहां चले जाएंगे। तो बोलता है मेटाफोरिकली, व्हाट मेटाफोरिकली दैट आई हैव टोल्ड, अलंकृत भाषा में कहो तो दिल्ली के बहुत पास और दिल्ली के बहुत दूर। Those who live here are squatters, मतलब ये शरणार्थी है। जैसे हम अपने देश से भाग के कृषि परिस्थितियों में, अभी तुम देख रहा है लेटेस्ट बांग्लादेश का नहीं समझ में आ रहा, यूक्रेन से लाख लोग, पोलैंड में, उधर तुम्हारा अमेरिका, उधर और कौन दिखा रहा है, तुम भूल रहे हैं, सब वहां से भाग के जा रहे हैं। सबका घर मकान जल गया और बचे हुए भी हैं तो बॉम्बार्डिंग हो रहा है, इसलिए भाग रहे हैं। तो जब दूसरे देश में हम जाते हैं, हम लोग स्क्वैटर्स हो जाते हैं, हम लोग शरणार्थी हो जाते हैं, इमिग्रेंट्स हो जाते हैं। तो ये सारे इमिग्रेंट्स हैं, कहाँ के हैं? दो जो लिव हियर, अभी सीमापुरी में जितने लोग रह रहे हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, ये सारे लोग वो लोग हैं। मोस्ट ऑफ देम आर, लेट्स से मुस्लिम फैमिली, Muslim people, and they have come from Bangladesh. Why? The story is not describing that war was there, which I told in the class. In, let's say, between India and Pakistan, you also don't mention. You simply mention because their life was completely damaged due to continuous and repeatedly storms. The storms not only destroyed their homes, but also their fields, and time and again they lost everything. So there was no, let's say, independence. ऐसे रहता था कि चलो घर, इन लोग घर बनाएगा कहाँ से? पैसा ही नहीं, तो खेत भी तो बर्बाद हो गया जहां से पैसा आता है। खेत में अनाज पैदा होता है, ठीक है, और उसको हम लोग खाने के लिए रखते हैं और फिर बेच देते हैं, तो अब तो खेत भी बर्बाद, घर भी बर्बाद, कुछ नहीं बचा। इसलिए अब भागो यहाँ से। साहब फैमिली इज अमंग देम, नंबर ऑफ फैमिलीज आर देयर। एक फैमिली साहब का भी है, ये साहब से थोड़ा ज्यादा क्लोज हो गई थी, इसलिए साहब के घर चली गई। अगल बगल सारे उस तरह के बच्चों का घर है, लेकिन गई है साहब के घर ही। सीमापुरी वाज बोलता है और उसके साथ देन लगाया हुआ है, मतलब आज का सीमापुरी का बात नहीं करोगे, ठीक है? सीमापुरी वाज देन, एक मिनट, सीमापुरी वाज देन, सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, जंगल था जो हम बार बार सुबह से बोल रहे हैं, वहां कोई जाता नहीं था और डंप किया जाता था कूड़ा कचरा वो। लेकिन उस समय, आज से 40 साल 50 साल पहले, इट क्या लिख दिया है यहाँ पर, कटा हुआ है, इट साइंस बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, बोलता है आज भी है, लेकिन अब वो खाली नहीं है, अब जंगल नहीं है, अब वो एरिया तो पूरा बदल चुका है ना, बदल ये चुका है कि क्या हो गया है वहां, घर मकान बन गया, और वो दिल्ली है, कैपिटल है। अब तो पूरा आधा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, कानपुर तक सब दिल्ली ही बोला जाता है। कुछ दिन में कानपुर और दिल्ली, गाजियाबाद, ये सब एनसीआर, नोएडा तो सब हो ही गया इधर, और उस साइड में वो पूरा हरियाणा, आधा हरियाणा चला आया है तुम्हारे दिल्ली में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जैसे गया का देख रहे हो, स्कूल तक का बिल्डिंग बन गया, उधर बोध गया तक का बिल्डिंग बन गया है, लोग हैं, जमीन है नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। वो बोलते हैं दैट वाज इट स्टिल, शायद ऐसा लिखा हुआ है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, पहले खाली था, वहां लोग नहीं रहते थे, आज तो लोग रहना शुरू कर दिए। In structures of mud with roofs of tin and tarped,
अगर घर भी बना हुआ है ना तो झोपड़ी वो मिट्टी का बना हुआ है, घेरा बना दिया है या चाटो दीवार बना दिया है, और तारपुलिन का एक कपड़ा होता है या प्लास्टिक ऊपर छत उसी के नाम पे चल रहा है, डाल दिया है। लेकिन वहाँ डिवाइड ऑफ सीवेज, वहाँ नाला नाली नहीं है, जिधर पानी बह गया कहाँ से नाला नाली देगा? ना गवर्नमेंट बनवा रहा है, इन लोग कहाँ से बनवाएंगे? ड्रेनेज नहीं है, सीवेज सिस्टम नहीं है, नाला नाली का, टॉयलेट का ड्रेनेज नहीं है, और रनिंग वाटर इज ऑल्सो नॉट, लेट से आई मीन अवेलेबल। और जैसे कि हम लोग के घर में चाहे तो बोरिंग है या नहीं है तो सप्लाई से आ रहा है, ये सब वार्निंग। वो तो जंगली इलाका था और उस समय तो कौन देता पानी? तो जहां गंदा संदा पानी मिल गया, हम सुबह तुमको बोले दे हैव नथिंग, नो फूड, नो वाटर, वाटर भी नहीं है, गंदा पानी पी रहे हैं, नाला नाली का पानी पी रहे हैं, हवा भी जहरीला है क्योंकि वहां खाली कूड़ा का ढेर है। wherever let's say I mean good amount of garbages are dumped, it all particles start, let's say I mean hovering into the sky, and we have to, let's say I mean breathe the air which is highly polluted because different type of materials are there, isn't it? तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ रनिंग वाटर नहीं है, सीवेज नहीं है, live 10,000 rag pickers, हम सुबह ही क्लास में बता दिए, not only one Sahab but 10,000 families like Sahab are living there. And all these 10,000 families have come from Dhaka, Bangladesh. Why? Time and again it is clear. They have lived here for more than 30 years. ये तो स्टोरी लिखने के बाद में बोली है, आज के डेट में ये हो गया है तुम्हारा 50 साल, ठीक है? ये तो जब स्टोरी लिखाया था उस समय 30 साल हो गया। तो बोलते हैं कि यहाँ रहते रहते इन लोग को 30 साल हो गया। 30 साल में जो बच्चा जन्म लिया है ना, वो 30 वर्ष का नौजवान हो गया, उसकी भी शादी हुई, उसके भी बच्चे हैं। लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, व्हाट डज generation after generation, their status social remains the same. They have to live in muddy houses or under the open sky, no water, no food, no sewage system, no drainage system, and they have to depend upon rag picking if they want to survive. इसी में से बहुत सारे बच्चे चोर चुहाड़ हो जाते हैं, बदमाशी क्राइम करने लगते हैं। और रनिंग वाटर, लिव 10,000 फैमिली, they have lived here for more than 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। उन लोग का आइडेंटिटी नहीं है, हम लोग का आइडेंटिटी, हम लोग का आधार कार्ड है, हम लोग का वोटर कार्ड है, मतलब हम लोग को काउंटेड है। वहां काउंटिंग कहां से होगा? विदाउट परमिशन बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। हाँ, कुछ जो लोकल नेता है ना, क्या करते हैं, आके उनका ना राशन कार्ड एक बनता है, शायद तुम लोग को पता हो, हर घर में बनता है। हम लोग, तुम लोग नहीं बनवाते हो क्योंकि उस राशन कार्ड से सस्ता राशन मिलता है, ठीक है? जैसे गेहूं मिल रहा है 20 रुपया किलो, तो उस राशन कार्ड पर रुपया 2 रुपया किलो राशन मिल जाता है। अभी तो मोदी साहब कोरोना से कंप्लीट जिसका राशन कार्ड है फ्री, उनको राशन दिलवाए जा रहे हैं। तो उस राशन कार्ड नेता लोग बनवा देते हैं लोकल, क्यों? वो जानते हैं उसी राशन कार्ड के आधार पर ये हमको वोट देगा। इफ आई हैव प्रोवाइडेड देम, लेट्स से आई मीन राशन कार्ड, दे विल गेट, लेट्स से आई मीन चीप रेट, लेट्स से आई मीन राशन मीन्स और गेहूं, चावल, फूड स्टफ्स, जो दुकान में राशन की दुकान गवर्नमेंट का होता है वो मिल जाएगा। और उसके बहाने इन लोग को हम बरगलाएंगे और हम लोग को इन लोग क्या करेगा? वोट करेगा। इसलिए राशन कार्ड मिल जाता है, ठीक है? और उनका नाम चढ़ जाता है, जिसका भी राशन कार्ड में नाम है वो उनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ेगा और हम लोग देंगे। और बोलते हैं कुछ रहे या नहीं, आइडेंटिटी है या नहीं, जरूरी क्या है? खाना खाना। हम कुछ नहीं लाइफ लॉन्ग करेंगे, लेकिन जितना दिन जीवित है हम चाहते हैं हमको खाना मिले, इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है। व्हाट? फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। वेदर एनीबडी हैव any importance of me in their opinion or not, whether nobody knows or not, whether the government has counting or whether my name is, let's say, in the voter list or Aadhaar card or no, I damn care. I only care that I should get, if not the 3 times or 2 times, at least 1 time what? Food every day. So food is basic, let's say, stuff which is more important for survival than identity. Identity है, मेरे को जानने वाला मानने वाला कोई है या नहीं है भैया, खाना चाहिए। और खाना खाना है तो हम रहेंगे कहाँ? सीमापुरी में। और सीमापुरी में रहेंगे आज नहीं, उस समय। और सीमापुरी में रहेंगे तो एक प्रोफेशन है, एक बिजनेस, और वो है कूड़ा का चुनना। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। टेलिंग, हम सुबह तुमको बताए, हम लोग का जो इंटेस्टाइन है, अगर इसको फूड सप्लाई होते जाता है तो अपना पोजीशन को अंदर में मेंटेन करता, नहीं तो इधर से उधर जाता है, वही दुखता है और बहुत तकलीफ देता है। तो दिन तो कट जाता है, रात में नींद नहीं आएगा। और यहाँ पर ये लाइन में लिखा हुआ है दैट इफ होल डे दे आर वर्किंग on the garbage, and by the end of the day if they get 1 or 2 rotis or 1 time meal,
they thank God. Oh God, thank you very much. Now I can sleep peacefully because some food is in our, let's say, stomach. So they thank God and they're telling you that I will not go to my own country. Which country? Dhaka, Bangladesh. Why? Because there, my field is there. Good amount of lands are there. मेरा खेती बाड़ी है, कई बीघा जमीन है, लेकिन वो जमीन से हमको खाना नहीं मिलता। वहां तो जाएंगे तो फिर वही आंधी आएगा, तूफान आएगा और हम लोग उसको उपजा नहीं पाएंगे, प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, अगर रात को हम लोग सोने चल गए हैं कि पेट नहीं दुख रहा है, खाना खा लिए हैं, वी वुड रादर लिव हियर इन दिल्ली इन Simapoli than in fields that give us no, means there is certainty that I have determined that I will not go back to our country. से एक ग्रुप ऑफ वुमेन तो घर न पहुंच गई थी और उन लोग के वहां औरतों से मिली। औरतों मतलब ये जितने छोटे बच्चे हैं ना, उनकी बहनों से, उनकी माताओं से, उनकी दादी से, तो वहां एक ग्रुप से बात कर रही है। यही आंसर उनको मिला है। से एक ग्रुप ऑफ वुमेन इन tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river, उनसे पूछा गया कि आपका देश इतना सुंदर है, इतनी नदियां, पानी का स्रोत है और वहां खेत था, खलिहान था, हरे भरे पेड़ पौधे, तब क्यों छोड़ के आया? उसी पर उन लोग जवाब दिए, खेत है लेकिन वहां उपजाऊ नहीं होता है, पैदावार नहीं होता है, अनाज नहीं होता है, तो वहां रह के हम लोग क्या करें? भूखे भूखे मर जाएंगे। उससे अच्छा कि यहाँ कूड़ा ही चुनेंगे, कम से कम जीवित तो है। अच्छे कि जन्म लेने के बाद कोई आदमी मरना नहीं चाहता है। अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? लगातार हम बोलते गए। अब बोलो तुम लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम? प्रियांशु बेटा आज कैसे तुम क्लास कर रहा है? वीडियो खोल तुम, प्लीज ओपन प्रियांशु योर वीडियो, शो मी योर फेस। कहाँ है? हेलो, ओपन खोलिए सर, फिर क्लास में कल दिक्कत हो जाएगा आपको कि है ही नहीं, खोल के सो गए। अच्छा बेटा हम कल बात करते हैं। स्वाति, विजय लक्ष्मी, साक्षी, ऑल ऑफ यू लिसनिंग? ओके, अब तो एक आध मिनट है, 2 मिनट है। अब बोला नहीं जा रहा है, बहुत बोल दिया। अब तुम लोग को कोई प्रॉब्लम हुआ वो बोलो। यहाँ तक हम लगातार पढ़ा दिए, कहाँ तक समझ में आया नहीं आया हमको बताओ। बोलो बेटा, एवरीथिंग क्लियर? ठीक है सर, तो आप ही के क्लास में है सर। बोलिए। ठीक है तो ऑफ करो क्लास। लेस देन 1 मिनट। नाउ यू कैन लीव। यस लीव, नो प्रॉब्लम। देन मीटिंग टुमारो। और बोलो प्रियंका सलोनी, इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर टेल मी। है कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? प्लीज स्पीक। ओके सलोनी, ठीक है। टुमारो वी विल मीटिंग इन क्लास। और 11th का फीस जिसका भी बाकी है प्लीज क्लियर, टेल योर पेरेंट्स and nothing else is there, and get yourself admitted in your class 12th.